very much, Irfan, brother. First of all, I pay really a great thank to Pakistan Economic Forum and University of Gujarat for this collaborative session on a very much important topic is Udan Pakistan. And Udan Pakistan is very much important for the economist, for social scientists, even for businessmen या कोई मीडिया के पर्सन है, हर एक की इसमें इंटरेस्ट है कि हम जा किधर रहे हैं। और उसके लिए जो ये जॉइंट एफर्ट है विद पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, you people already know that Pakistan Economic Forum is one of the leading economist panel in Pakistan. Secondly, they are conducting different conferences, seminars, and workshop for the capacity building of our youth. We have more than 63% of people under 30 years of age. So this is the right time to develop their capacity, to develop their skill, कि वो किस तरह इकोनॉमिकली एम्पावर्ड भी हो सकते हैं और स्किलफुल भी हो सकते हैं। Secondly, this is a joint effort with the University of Gujarat, and University of Gujarat is one of the major university in Punjab, and we have more than 25,000 students on our main campus, which is known as Hafiz Hayat campus, and we are providing 26 to 28 more different departments in our BS program, MPhil, and PhD. As far as this webinar is concerned, this is about the Udan Pakistan, and Udan Pakistan is 13 5-year plan of Pakistan with a focus on 5 E's. They are focusing on 5 E's for sustainable economic development, for societal prosperity, and for the development of people of Pakistan. And the 5 E's, first E is for export. They want to promote the exports. Secondly, they are focusing on e-Pakistan. And third one is on the environment. Fourth one is on energy. And fifth one is on empowerment. Their focus is on 5 E's. और ये 5 E's से वो एक नई उड़ान बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके जो टारगेट्स हैं, फर्स्ट 5-year टारगेट, दिस इज 5-year plan from 2024 to 2029, and our first target is to grow at 6% for 5 consistent years, कि हमने 6% ग्रोथ अचीव करनी है इन 5 सालों में मसलसल। देन हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को $50 बिलियन को क्रॉस करना है। एंड थर्ड वन इज हम कंसिस्टेंटली अपना इन्फ्लेशन जो है इसको 6% पे स्टक रखेंगे, हम इसको डबल डिजिट नहीं होने देंगे। एंड to achieve freelancing income up to $5 billion, and most important, to decrease the poverty incidence of poverty by 13% in these 5 years. So these targets are of course काफी है कि हम उड़ान बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आज हम उस पर बात करेंगे कि क्या हम ये उड़ान जो है ये बढ़ेंगे या इसमें हमें कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे। उन पर बात करने से पहले मैं अगेन I want to pay tribute to Pakistan Economic Forum कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि दिस इज वन ऑफ द लीडिंग पैनल ऑफ पाकिस्तान जिसमें इतने एक्सपर्ट्स हैं। वी हैव डॉक्टर तलत अनवर, and you people know that Dr. Talat Anwar did PhD in economics from Sussex University, which is top ranked university in development economics. Secondly, Dr. Talat Anwar have 36 years of experience in teaching and research in various national and international organizations. He has worked in State Bank of Pakistan, World Bank, UNDP, UNICEF, and another most important thing is that they are regularly contributing their articles in various national and international newspapers, and also participating in different TV programs on Pakistan economic issues, specifically by focusing on poverty and income inequality. Our second panelist is Dr. Adil Nekoda. They are from IBA Karachi. Dr. Adil did their PhD in University of California, which is a leading university, and I think they have highest number of Nobel laureates in the globe. So Dr. Adil
most welcome, and he also has like wide experience of working with State Bank with various research organization, and currently he is working at IBA Karachi. And our third speaker is Dr. Kass Aslam. Dr. Kass Aslam worked in GC Lahore as a chairperson of economics department. He is like regularly contributing in different newspapers, different TV program, and other like social media talks. So Dr. Kass Aslam is very much prominent regarding their like views and their reviews on Pakistan economy. In they have the expertise on like talking on our financial aspects. They have the expertise on monetary aspect. They can talk on the trade. They can talk on the Pakistan like various socio-economic issues. So मैं इसमें पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम को अप्रिशिएट करूंगा कि इतना एक अच्छा पैनल सेलेक्ट करने के लिए और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को एज अ पार्टनर रखने के लिए वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ Pakistan Economic Forum, specifically the efforts of Dr. Irfan Hussain. Thank you very much, sir. Okay, in the next session, before a regular talk, before like the invitation to the panelist, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं कि दिस इज आवर 13th 5-year प्लान फ्रॉम 24 to 29। और इस 13 प्लान से पहले ये जो हम एक नई उड़ान 25 में हमने ऐलान किया है, इससे पहले बता दूं कि पाकिस्तान ने पहली उड़ान जो बड़ी बड़ी थी वो 60 to 65 का हमारा सेकंड 5-year प्लान था। फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट इन 1955 to 1960 जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक रहा, फाइल तक रहा, उसकी रियल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। और सेकंड 5-year प्लान फ्रॉम 1960 to 65, इसमें वी अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। लेकिन ये उड़ान हमारी क्रैश हो गई जब 65 की जंग हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान फिर उसी सिचुएशन में था जहां पे हम 1955 में थे। हमने सेकंड उड़ान भरने की कोशिश की जब हमने सारे का सारा जो सिस्टम है उसको लाइक प्राइवेट सेक्टर से उठा के पब्लिक सेक्टर को करके सोशलाइजेशन की तरफ लेके आने की कोशिश की, और ये जो सोशलिज्म की उड़ान थी ये भी हमारी कामयाब ना हो सकी। फिर पाकिस्तान ने एक और थर्ड 1990 में हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लिए कि हम शायद अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज करके वो लीवर्स के मॉडल को और इस तरह की चीजें स्ट्रक्चर चेंज करके इकोनॉमी को हम रिवाइवल की तरफ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा सके। बट वी आर अगेन अनएबल कि हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कर सके, और हमारा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ने हमें पॉवर्टी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद ये भी हमारी उड़ान क्रैश हो गई। फिर हमने आप सब लोगों के इल्म में होगा, हमने 2014 में एक गेम चेंजर के लिए सी पैक को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन सी पैक भी हमारी इकोनॉमी पे बोझ ही बना, उसने हमें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया, वो भी हमारी जो उड़ान थी वो क्रैश हो गई। फिर हमने 2017 एंड 18 में नया पाकिस्तान बनाने के लिए एक और उड़ान का प्लान किया कि अब हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन उसका भी कोई भी फ्रूट खाने के काबिल नहीं हो सका, और वो भी हमारा नया पाकिस्तान की उड़ान जो है वो भी क्रैश हो सकी। और अब हम 2025 में एक नई उड़ान बढ़ने के लिए है कि हम इन 5 years में 6% ग्रोथ भी लेके आएंगे रेगुलरली, हम इन्फ्लेशन को भी सिंगल डिजिट में रखेंगे, हम पॉवर्टी को भी कम करेंगे। तो क्या उसके लिए हमारे जो फर्स्ट पैनलिस्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी हम्बल सबमिशन होगी हमारे बहुत ही सीनियर जो कोलीग हैं डॉक्टर तलत अनवर साहब से, कि डॉक्टर साहब की एक्सपर्टी पॉवर्टी, पब्लिक फाइनेंस और पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब पाकिस्तान के जो उड़ान भरने के लिए जितने हमें मजबूत पार चाहिए, क्या पाकिस्तान के पास इतने मजबूत पर है कि हम इस उड़ान को भर सके, या इसके लिए हमें कुछ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे? तो उस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कम से कम 10-12 मिनट में एक ब्रीफ सा उस पे जो है वो टॉक दे, ताकि हम उससे आगे वो डिस्कशन जो है उसको कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम। जी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच इरफान समी साहब। मैं लेट मी ओपन माय video. Okay, I think now you can hear and you can see me as well. Is it okay? Yeah. Ji. Thank you very much for inviting me for this important forum to discuss the Udan Pakistan program.
which is a vision document for the government of Pakistan for for the period 2025 to 2035. And why we are having a vision document? Earlier, we used to have a plan document, 5-year planning or the structural adjustment program. And apart from these, plans or the structural adjustment program, we also had some, we prepared to Vision 2010, Vision 2025, and Vision 2025, probably I remember. I worked on it, on Vision 2025, which was the previous vision of the current government between 2015 and 2025. And that vision, was not pursued or implemented in letter and spirits. So now I think the government is thinking that we need another vision in 2025, so that they can pursue their goals and the target that they want under their political and economic dispensation. So if you look at the vision document, it is quite good and ambitious as well, because under this vision, growth targets are set at a very high level. GDP is to grow by 6% per annum between 2025 and 2030, 2029. And then in the latter years, the GDP is targeted to grow by 9%, which is a more ambitious target. And if you look at the current state of the economy, in the last quarter, GDP grew by 0.98%. Over the last quarter, the GDP growth rate was 0.9% of 2024-25 fiscal year. So you can see that how vision is close to the reality. So, in my view, I think vision must be closer to the reality. Otherwise, people won't follow vision in letter and spirit. So the reality is that, we have just, signed the IMF program last year, and we are now in the IMF program, and we are in the stabilization mode. Excuse me, Dr. Talat Saab, will you please some mixed language like Urdu or English? हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी सारे लोकल ही हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनको एक जो क्लियर पिक्चर है वो नजर आए. थैंक यू. जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक जीडीपी ग्रोथ रेट वाज वेरी लो. जैसा आप देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन पीरियड. और आप इफ यू लुक एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान, earlier, you will see that whenever we have high inflows from abroad or foreign aid or grants from abroad, we had the high growth rate. And when foreign inflows are dried up, then we had a problem of current account balance. So this is a boom and bust cycle that we have experienced over the past 20 years. You can achieve a higher growth rate by attracting more foreign inflows in terms of foreign aid or in terms of overseas workers remittances. Then you spend more on PSDP, public sector development expenditure. So you achieve the higher growth rate, as is the case between 2002 and 2006 during the military regime. And then we have a crisis in 2008. And as a result, we had IMF program. After the IMF program, again, we have seen between 2014 and 2014 and 2018, we had the high growth rate of about 5 to 6% per annum during this period. But at the end of 2018, we had the high current account deficit. So high current account deficit हो गया, जो कि 20 बिलियन का था. वो इसलिए हुआ कि जब हम बाहर से इमदाद लेते हैं और अपनी इकोनॉमी में खर्च करती है गवर्नमेंट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे वो दूसरे प्रोजेक्ट पे हो,
तो हमारी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना बहुत हाई हो जाता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में एक बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो लोन से फाइनेंस किया जाता है। जब कर्जे लेकर फाइनेंस की जाएगी ग्रोथ, तो फिर लोन बहुत बढ़ जाएंगे और वो आपको आफ्टर ऑल गवर्नमेंट हैज टू पे। और वो इस तरह के, इफ यू लुक एट द डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट बिटवीन 2008 एंड 2013, debt servicing requirement was in the range of 4 to 5 billion per annum. But in the next 5 years after 2014 and between 2014 and 2018, the debt servicing requirement grew because whatever we had taken loan in past we have to pay. तो वो हमारी लोन जो थे, हमारी डेट सर्विसिंग 5 to 6 से 7 to 8 बिलियन हो गए। और जब 2018 के पास 18 में दूसरी गवर्नमेंट आए तो डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट अराउंड 11 बिलियन हो गए। यानी इफ यू लुक एट द ट्रेंड, जो कर्जे हम लेते जा रहे हैं वो कर्जे हमारे डेट सर्विस हाई डेट सर्विसिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी हमने ग्रोथ तो कर ली, लेकिन ग्रोथ करने के बाद वो कर्जा जो है ना वो बढ़ गया। अच्छा, आप देखें कि आजकल क्या है। आजकल जो है, इट्स पाकिस्तान इज रियली इन अ प्रॉब्लम, इन अ डेट ट्रैप। वी बारो ओनली टू रीपे आवर प्रीवियस डेट। आजकल ये है कि जी हमारी डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट 15 to 16 बिलियन है, और जो कि हम गवर्नमेंट की है और कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी है, वो मिला के 4 to 5 बिलियन और मिला रहे हैं, तो 20-22 बिलियन की डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट है और 4-5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है जो हमने फाइनेंस करना है। सो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 25 to 26 बिलियन जो पर एनम के हिसाब से फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है। इतने हमें डॉलर चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। और currently, IMF program, we have signed an IMF program, and in my view, IMF program जो है ना वो correctly design नहीं किया गया, because it is based on the rollover debt. Every year we have to roll over our external debt to the tune of about 15 billion. हमारे 14-15 बिलियन डॉलर के डेट रोल ओवर होते हैं, जिसमें यूएई के 4 बिलियन है, 5-6 बिलियन सऊदी अरेबिया के, और चाइना के भी इसी तरह 5-6 बिलियन के, तो अराउंड 14 आते हैं। ये रोल ओवर हुए बगैर हमारे डिफॉल्ट का खतरा नहीं टलता है। अगर ये हम रोल ओवर ना करें, ये हमारे ये जो दोस्त ममालिक है ये इनकार कर दें कि जी हम इन्हें रोल ओवर का मतलब ये कि एक कर्जा और ना दें, तो कर्जा ना दें तो फिर ये हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा सिवाय डिफॉल्ट के। तो आईएमएफ प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को रखते हुए तो ये दोस्त ममालिक से हम रोल ओवर लेते हैं और वो इस पर इंटरेस्ट यानी अर्न करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये 15 और 16 बिलियन पर जो इंटरेस्ट पर एनम हमारा बढ़ जाता है, 1 to 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए ओवर टाइम लोन बढ़ते जा रहे हैं, यानी लोन भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ डेट सर्विसिंग बढ़ रही है। तो ये वी आर इन अ डेट ट्रैप। अब गिवन दिस सिचुएशन, हाउ वी कैन ग्रो बाय 6% पर एनम। आप देखें ना कि पिछले साल भी हमारी ग्रोथ इतनी नहीं थी, 2-3% तो हो सकती है, 4% तक भी जा सकती, लेकिन ये रियलिटी से क्लोज नहीं है कि 6% जाए। और आखिरी सालों में हो सकता है 9% हो जाए, इसमें कोई शुबा नहीं, जब हालात बेहतर हो जाए। लॉन्गर टर्म में 8-9% जा सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है, यानी इन टर्म्स ऑफ टारगेट, एक तो ये है। सेकेंडली, जो ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारे एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, और एरियाज में जो है आप देखें कि 5 E's हैं, यानी एक्सपोर्ट्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया। एक्सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अगर अपने प्रोजेक्ट फाइनेंस करने तो हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना होगा। Pakistan earn foreign exchange through two forces. One is the export, the other one is the remittances. Overseas workers remittances भी exports के बराबर हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बड़ी अहमियत है। तो देयर इज़ नो डाउट कि एक्सपोर्ट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। इन पर्टिकुलर आईटी के एक्सपोर्ट्स में हमारा बड़ा जो है ना पोटेंशियल है। 4 to 5 बिलियन तो हम आसानी से बढ़ा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग बाय ट्रेनिंग अवर वर्क फोर्स, और उनको इंटरनेशनल एक्सेस दी जाए और उनको जो है ना डिफरेंट कोर्सेज कराए जाए
कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर ले आईटी में। और उसके अलावा हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, उनको भी मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, और दूसरे जो नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बढ़ाया जा सकता है। और ये करना चाहिए। अगर हम एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करते हैं तो वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन, हमें कोई बारो मज़ीद नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरे एरियाज भी इम्पोर्टेंट है, जैसे एनवायरनमेंट है। ई पाकिस्तान वही है जो कि मैंने आपको बताया कि उनको डिजिटाइजेशन करें सिस्टम को और एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। और उसके अलावा मैं भूल गया कौन से पिलर हैं। बहरहाल ये ऑल दीज एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि करंटली वी आर इन आईएमएफ प्रोग्राम। जब आईएमएफ प्रोग्राम होता है तो कोई भी इकोनॉमिक प्लान जो है ना, हिस्ट्री बताती है कि कोई इकोनॉमिक प्लान जो है ना काम का नहीं होता। आप देखें अंटिल 1990 वी हैड इकोनॉमिक प्लान, 5 इकोनॉमिक प्लान थी, हम प्लानिंग थी हमारी। जो छठा 5 साल मंसूबा था जो कि महबूब साहब ने बनाया था, बहुत अच्छा मंसूबा था। इससे पहले 60s में भी बड़े अच्छे मंसूबे थे। तो छठा 83 84 में उसमें इम्यूनाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर और एजुकेशन पे बहुत कुछ किया गया था। उसके 8 सम्राट नज़र आ रहे हैं। तो वो उस तरफ, क्योंकि एक बार कोई प्लानिंग कर दे तो वो चलती रहती है, कंसिस्टेंटली चलती है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 1998 में हमारे पास आईएमएफ आ गया। आईएमएफ में आया तो उसने कहा कि उसके होते हुए कोई प्रोग्राम, कोई इकोनॉमिक प्लान चल नहीं सकता है। तो हम एनुअल प्लान पर आ गए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जब आईएमएफ से मुशर्रफ गवर्नमेंट निकली है इन 2002, तो फिर उन्होंने एक 5 ईयर प्लान बनाया जो एमटीडीएफ कहलाता था, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। वो भी एक 5 ईयर प्लान था। लेकिन चूंकि आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को चिढ़ है, ये हकीकत बता रहा हूँ, ये मुझे बड़े इंपॉर्टेंट आदमी ने बात की थी, और जो कि जैसा आप लोग, जिनको आप सब जानते हैं, परवेज ताहिर मरहूम, उन्होंने कहा था कि आईएमएफ को चिढ़ है। मैंने उनसे कहा था, ही वॉज चीफ इकोनॉमिस्ट, मैंने कहा आपने इसको प्लान क्यों नहीं रखा नाम, इसको मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्यों नहीं कहा रखा। तो परवेज ताहिर साहब मरहूम जो थे, उन्होंने कहा कि जी इनको इदारों को, बड़े नेशनल यानी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को चिढ़ होती है जब हम प्लान कहते हैं, दे आर अगेंस्ट द प्लानिंग। तो हमने सिर्फ फ्रेमवर्क लिया तो वो एग्री कर गए। तो वो एनुअली बड़ा अच्छा प्लान था, उसमें ग्रोथ भी बढ़ी है। उसके बाद आप देखें कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में रहे मुसलसल, फ्रॉम 2009 एंड ऑनवर्ड हमारे साथ प्रोग्राम रहा है। और वेन एवर वी हैव एन आईएमएफ प्रोग्राम, तो हमें उसका प्रोग्राम वक्ती तौर से तो खतरा टल जाता है और हमारे यानी स्टेबलाइजेशन आ जाती है, लेकिन हम काफ़ी पीछे चले जाते हैं ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में, और वो ग्रोथ रिवाइव नहीं हो पाती है। और उसके बाद हम जब मज़ीद कर्जे लेके खर्च करने की कोशिश करते हैं तो हमें डेट सर्विसिंग आन गिरती है, और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं कि कैसे हम डेट सर्विसिंग का करें कंट्री के लिए। सो आई विश के ये जो उड़ान है, ये उड़ान साबित हो अच्छी, और उड़ान जो है ना मुल्क और कौम के लिए यानी परसू की जाए, क्योंकि हमारे पास विजन अच्छा होना चाहिए हमें परसू करने के लिए। अगर विजन ही हमारा दुरुस्त नहीं है, इट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। तो कोई विजन ही नहीं है कि जी हम एक अच्छा जो है ना ग्रोथ रेट हासिल करेंगे, अच्छी जीडीपी पर कैपिटा हम लेंगे, तो उसके बाद कोशिशें भी नहीं होती। होपफुली कि ये जो विजन है दैट वुड बी हेल्पफुल टू अटेन different targets in different areas, especially in 5 E's area. Thank you very much. डॉक्टर तलत अनवर, थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास इस वक्त मोर देन 80-90% यंग लोग बैठे हुए हैं जो एमफिल पीएचडीज में हैं, एंड लाइक दे आर वेरी मच हैप्पी। वो मुझे फीडबैक दे रहे हैं, और मैं उनको पहले भी कहा कि डॉक्टर तलत अनवर साहब जो हैं, ये सुबह से शाम तक इन इश्यूज पे बात करें तो हमें दिल करता है सुनते जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट मजीद लूंगा कि डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए कि वी आर फेसिंग डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम, वी आर विद द आईएमएफ, और पाकिस्तान ने शायद आईएमएफ से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोग्राम सामने लिए हैं। और हमारी जो, जिस तरह बता रहे हैं कि 1% से कम ग्रोथ से किस तरह हम सस्टेन कर पाएंगे 6% से। इसके साथ डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान का देखा जाए, वी हैव हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल किड्स। ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे आगे एआई के साथ कैसे compete करेंगे, नंबर 1।
Number two, according to World Economic Forum Global Gender Gap Report, we are on 145 out of 146 countries. We are second worst country with reference to gender disparity. And with reference to quality education, USAID कहता है कि we have 58% kids जो जिस क्लास में हैं they are unable to read and write a single sentence of English and Urdu. डॉक्टर साहब, जब इस तरह के हालात हैं, इतने कमजोर पर हैं, तो क्या चीजें मैनेज हो जाएंगी? सिर्फ 1-2 मिनट में हमें थोड़ा सा अपना फीडबैक कि ये हमारी सोसाइटी की पिक्चर है कि इतना आउट ऑफ स्कूल बच्चा है, इतनी जेंडर डिस्पैरिटी है, इतनी क्वालिटी एजुकेशन के प्रॉब्लम है, एंड इफ वी आर लाइक टॉकिंग अबाउट फ्रेजिलिटी इंडेक्स, तो उसमें हम टॉप 10 जो वर्स्ट वो जो स्टेट फील्ड है उसमें वो हमें लेते हैं, अगर हम ग्लोबल रैंकिंग में अपने आप को लेके हैं। तो आप उसको जस्ट थोड़ा सा, ताकि हमारे यंग लोग हैं इनको थोड़ा सा आइडिया हो अबाउट द स्टेटिस्टिक्स, अबाउट द रियलिटी, हम किधर जा रहे हैं, कैसे जाएंगे। जी प्लीज। जी डॉक्टर समीर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी वी आर इन द स्टेट ऑफ इन अ वेरी पुअर स्टेट ऑफ knowledge and state of the economy is not good, or we do not have sufficient resources or investment. Even then, how we can grow? बात ये कि despite all these odd factors, we are in globalization and we have integrated our economy with the rest of the world. और उसमें हम further integration अगर करें तो हम we can benefit from ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि आप देखें ना कि हमारे पास यूथ बल्ज है, एक यंग पॉपुलेशन जो है, प्रोपोर्शनली 60% पॉपुलेशन इज यंग दैट कैन वर्क इन इंटरनेशनल मार्केट। ये बहुत बड़ा यानी हमारे पास जो है ना एसेट है। उनको अगर हम एजुकेट करें, प्रॉपरली ट्रेन करें और स्किल डेवलपमेंट करें तो हम इनको ये बाहर जा सकते हैं, compete कर सकते हैं, जैसा कि अब हो भी रहा है कि हमारे यंगस्टर्स भी जा रहे हैं और लेबर भी जा रही है, लेकिन यंगस्टर्स हाईली क्वालिफाइड लोग इस साल बल्कि आप देखें कि क्वालिफाइड लोग ज़्यादा गए हैं। उसकी वजह ये कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसमें टैक्सेशन बहुत हाई था। ऑलमोस्ट जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको उनके 45% या 49% तक इनकम टैक्स कर दी गई है। जब आपकी इनकम देखें 50% इनकम तक पे टैक्स होगा तो आपके पास इंसेंटिव नहीं होंगे कि आप यहाँ रुके और कमाएं। मैं मिसाल देता हूँ कि जो 4-5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी है, उसकी अगर 50% इनकम टैक्स में चली जाएगी तो उसके पास 2-2.5 लाख रुपए टैक्स में चला गया, यानी 1 लाख 1.5 लाख महीने का टैक्स में चला गया। तो वो क्या बचाएगा और क्या फ्यूचर प्लानिंग करेगा? तो लोग इसको मैच करते हैं कि जी हम अगर यहाँ 5 लाख कमा रहे हैं तो हम बचा कुछ नहीं रहे, इतना हमारा खर्चा हो जाता है। हमारे खर्चा खाना पीना 1 लाख 1.5 लाख और बच्चों के लिए जो यानी तालीम वगैरह का खर्चा, तो हार्डली हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो कंपेयर करते हैं कि हम बाहर चले जाएं, दुबई चले जाएं या यूएसए यूके चले जाएं, तो वह हम तकरीबन 4-5 लाख रुपए महीना बचा सकेंगे। तो देखें इनकम लेवल नहीं, इट्स रियली सेविंग मैटर। तो इसलिए लोग जाते हैं बाहर और हमारा जो ये एक एसेट है, अगर ये कोशिश करें और गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर प्रमोट करे। आईटी में आपने बात की कि आईटी में हमारा विजन है, तो लास्ट ईयर तो गवर्नमेंट ने 5 बिलियन एलोकेट किए थे, अब 50 बिलियन के करीब इस साल के बजट में एलोकेट किए आईटी के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग कि हम आईटी में जो है ना डिफरेंट हर्डल्स हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। और टैक्सेशन में भी आप देखें ना, आईटी कंपनीज को तंग किया जाता है, वो अपना फॉरेन एक्सचेंज यहाँ रख नहीं सकते हैं। अगर यहाँ रखेंगे उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। जब वो फॉरेन, क्योंकि उन्हें फॉरेन एक्सचेंज कंपनी की रिक्वायरमेंट उनकी कंटिन्यूसली रहती है, क्योंकि वो बाहर से जब सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो उन्हें डॉलर में पे करना होता है। और गवर्नमेंट जब वो एज आईटी एक्सपोर्ट वो अगर ले आते हैं तो गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ता है। फिर वो एक तरफ वो सरेंडर कर देते हैं चीपर रेट पे और हायर रेट पे, वो फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ओपन मार्केट से खरीदते हैं। तो उनके लिए ये मेजर ठीक नहीं है। इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि आईटी फर्म्स को अगर प्रमोट करना है तो उनको कंप्लीटली जो है ना आप उनको फ्रीडम दे के जो रख सके, खरीद सके। उनसे फॉरेन एक्सचेंज आप लें ही नहीं, जो कुछ परसेंटेज ले लें, सारा ना ले। तो एक तो ये बात है। दूसरे जो कोर्सेज हैं वो कराए जाए, ट्रेन किया जाए और लोगों को बाहर भेजा जाए, फैसिलिटेट करें। जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।
डॉक्टर साहब आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव एक पूरी इकोनॉमी का छोटा सा ऑपरेशन करके हमारे यूथ को बड़ा अच्छा एक नया एक्सपोजर दिया। हम डॉक्टर साहब आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में दोबारा डिस्टर्ब करेंगे। अभी हम अपने सेकंड स्पीकर थैंक इस यू वेरी मच, वक्त बहुत शुक्रिया। हमारे पास हैं डॉक्टर आदल फ्रॉम आईबीए कराची। And IBA is a good brand regarding the academic activities. तो डॉक्टर आदल वेलकम अगेन इन द सेशन। और डॉक्टर साहब के पास जो डॉक्टर आदल हैं, जिस तरह मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टर साहब की पीएचडी है इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। तो इस वक्त जो उड़ान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा उनका जो फोकस, जिसका जो उनका शाइनिंग स्टार है, that is the export promotion के within 5 year they want to like increase your exports by $50 billion। तो उस पे डॉक्टर साहब की जो प्रेजेंटेशन है, जो डिस्कशन है, उसमें वैसे एक छोटी सी चीज मैं शेयर भी करता जाऊं कि डॉक्टर साहब हम जो पाकिस्तान है, हमने जब कोविड आया तो हम जो मास्क है, जो एक छोटा सा फाइबर का पीस होता है, वो भी हमने इंपोर्ट किए। हमारे पास जिस वक्त सामने जो मोबाइल और लैपटॉप है, ये भी हमने चाइना से लिया हुआ है। हमारे पास जो ये चाय का कप है, ये भी पाकिस्तान का बना हुआ नहीं है। हमारे पास एक छोटी सी नीडल बटन लगाने के लिए, वो भी मार्केट से ले गए, ऊपर चाइना की स्टैंप ही होगी। हमारे घर में जो एलसीडी है, बिजली का जो बटन है, डोर का जो लॉक है, जो ऑफिस की की है, ये तक हम जब इंपोर्ट करते हैं, तो क्या हमें थोड़ा सा ये मतलब क्या हम इस इतने बड़े टारगेट को अचीव करके, तो जो $50 बिलियन इज अ लाइक गुड नंबर, तो क्या हमारे पास, जिस तरह मैंने डॉक्टर तलत अनवर साहब से कहा है, कि क्या हमारी इकोनॉमी के पास जो टेक ऑफ करने के लिए, इतना टारगेट अचीव करने के लिए, जो हमें वो एक स्पीड चाहिए होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है, एक अपने जो विंग्स हैं उनकी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी के पास ऐसा है? उस पे डॉक्टर साहब आपके यकीनन हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स होंगे, वो हमारे यूथ को एनर्जी देगा। उसके साथ आपके अपने पर्सनल रिव्यूज भी होंगे, पर्सनल व्यूज भी होंगे। तो डॉक्टर साहब प्लीज वेलकम अगेन। और हम आपको वो आपकी प्रेजेंटेशन के बाद हम इस पे फिर डिस्कशन लेंगे। डॉक्टर साहब Okay. मोस्ट वेलकम। Thank you, Dr. Samir. Thank you, Irfan, for inviting me. It's a pleasure to be here and talk to Pakistan Economic Forum. So, let me start with some of the brief discussion. Yeah, I think ये काफी important एक question पूछा है कि imports का हमारा काफी dependence है, but I'll come to that point. But पहले मुझे थोड़ा discuss करना था ईरान के बारे में, जो है 5 E's के बारे में। तो एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो है 5 E's का, वो है एक्सपोर्ट्स का एक कंपोनेंट है जो बेसिकली ट्रांजिशन करना चाहता है इकोनॉमी दैट कैन सस्टेन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तो ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की पूरी बात जो है, तो ये आइडेंटिफाई करता है डॉक्यूमेंट के की चैलेंजेस क्या है हमारे पास अभी जो है। तो स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट्स है, लो प्रोडक्टिविटी लेवल्स है, पुअर बिजनेस एनवायरनमेंट, लिमिटेड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोर्ट मार्केट्स, और अंडर डेवलप्ड एसएमई सेक्टर। Low exports capabilities again is more of a consequence of poor productivity rates, which has been one of the lowest in the region for Pakistan. So हमने पाकिस्तान में देखा है कि पाकिस्तान, एक रिसेंट एक रिपोर्ट थी इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप की, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी रेट्स है वो स्टैग्नेंट रह चुकी है 1990s से। लेबर प्रोडक्टिविटी अगर इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का देखें तो वो 4 और 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है 1990 और 2018 के बीच में, हालांकि पाकिस्तान की सिर्फ 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है प्रोडक्टिविटी रेट। और एवरेज एनुअल प्रोडक्टिविटी जो ग्रोथ हमारी है, अनफॉर्चुनेटली ये जो लास्ट 20 साल में, वो सिर्फ 1.4% रही है। बल्कि प्लान जब ये करता है मेंशन, तो उसमें वो कहता है कि इंक्रीज द 3% इज नेसेसरी टू अचीव व्हाट 6% ग्रोथ रेट जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो हमारी वो 3% इंक्रीज होनी चाहिए, हालांकि सिर्फ लास्ट 20 ईयर्स में, या आप बेसिकली 40 ईयर्स में कह सकते हैं, तो 1.4% रही है। So exports are highly concentrated in the textile sector, and that contributes to approximately 60% of the exports. तो वो हमारी diversification की जो बात आ जाती है। And then we export rice, which is again about 10% of total exports from Pakistan. So what we look at the export levels, and we see that we basically find that we lack diversification, but we also have concentration on low value added products that have little spillover and agglomeration effects, right? So यही एक पूरा आ जाता है। So even within the textile sector, the exports are of relatively low quality products. And it is also important, I think, I emphasize karna ke lack of documentation and high degree of informality in the economy prevents the development of the SME sector.
Now, let me highlight some of the key indicators before I go ahead with this topic. So, yeah, I think ये report में भी highlight किए गए, but इसको मुझे जरा वो compare भी करने दें. So, we have one of the lowest exports to GDP ratio and imports to GDP ratio in the Asia Pacific region. Exports to GDP ratio हमारे about 10% है and imports about 20% है, which is again both ranked pretty low compared to the successful East Asian economies, जिसकी about 50% है, both में इससे 50% से ज़्यादा exceed करती है. और फिर देखा जाए हमारे जब टैरिफ रेट्स हैं तो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन एट 8%. East Asian economies have significantly reduced their tariff rates, or a lot of them now have below 5%. And one of the things that we look at our import share is basically import अगर हम देखें तो उसमें जो composition है वो fuel का बहुत import share जो है काफी high है. इंडिया का yes हमारे से हाई है फ्यूल का, लेकिन इंडिया अगेन पार्टिसिपेट्स इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स. तो वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया रिफाइंड फ्यूल का. वो बेसिकली इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल रशिया से और एक्सपोर्ट कर लेता है उसको रिफाइंड प्रोडक्ट की तरह. वो हम नहीं कर सके, राइट. फिर हमने हमारी आईटी की जब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स देखते हैं, जब टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट्स देखते हैं, जब लेटेस्ट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज की देखते हैं, तो वो अगेन वी सी दैट्स वेरी लो कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज. So Pakistan has one of the lowest again, और ये report में भी यही है कि we have one of the lowest levels of investment as a percentage of GDP in the Asian region. हमारी gross fixed capital formation as a percentage of GDP हमारी about 10% है, और बांग्लादेश की और इंडिया की देखा जाए तो वो 30% से exceed करती है. Again, because of these low levels of productivity, हम global value chains में नहीं participate कर सके. तो यही है कि आपका जो question था कि हम switch क्यों नहीं बना सकते यहाँ पाकिस्तान में, या हम ये finished goods क्यों नहीं बना सकते और हम import पे क्यों dependent हो जाते हैं. यही पूरी बात है कि हमारी जो local productivity और competitiveness है वो इतनी low है कि it's actually cheaper for us to import goods and produce instead of producing locally. राइट. सो 20% ही हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो पार्टिसिपेट करती है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में. और अगर आप थाईलैंड और वियतनाम के देखें तो वो 60% से एक्सीड करता है. बांग्लादेश ने भी रिसेंट आप लास्ट 20 ईयर्स में देखें तो वो लोग ने डबल किया है अपनी पार्टिसिपेशन इन जीवीसीज. वाइल पाकिस्तान अगेन हम लोग का जो जीवीसी की पार्टिसिपेशन है वो जनरली लिमिटेड टू रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की एक्सपोर्ट्स है, जो बाद में कन्वर्ट होके दूसरा जो हमारा जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसको कन्वर्ट करके वहां पे उसको मैन्युफैक्चर करके आगे भेजता है. आप ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में देख लें ऑन दी अदर हैंड तो वो इंपोर्टेड इनपुट्स को एक्सपोर्टेबल आउटपुट बना रहे हैं, वो बैकवर्ड लिंकेजेस में ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए. और वही हमारा मसला है कि हमने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो लिंकेज है उसको हमने नहीं वो स्ट्रेटेजाइज किया है. सो द गवर्नमेंट अगेन recommended measures to overcome the challenges. तो प्रोडक्टिविटी इश्यूज वो लोग ने गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला है, नेशनल प्रोडक्टिविटी मास्टर प्लान. Product and market diversification will be increased by different strategies that involve exploring new markets and targeting new products. ये गवर्नमेंट की प्लान है. गवर्नमेंट एक पाकिस्तान रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है, जीरो टाइम टू स्टार्टअप पॉलिसी लेके आ रहा है टू मेक श्योर दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट जो ज्यादा कंड्यूसिव हो जाए. एसएमई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आ रहा है, सच एज लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए फंड्स जारी कर रहा है, जेंडर बेस्ड इंक्लूसिव फाइनेंस प्रोग्राम शुरू कर रहा है, और एज वेल एज इंटीग्रेट करना चाह रहा है एसएमईज इनटू ग्लोबल एंड रीजनल वैल्यू चेन्स. बट अनफॉर्चुनेटली इसकी डिस्कशन काफी नहीं भी है. जो ये जो मेन शॉर्ट कमिंग्स क्या है इस डॉक्यूमेंट की, ये है कि कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल जो है प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज करने के लिए, इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, और कैपेसिटी और हमारी कैपेबिलिटीज वर्कफोर्स की इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए और ज्यादा कंपेटिटिव बनाने के लिए वर्ल्ड मार्केट में, उसके लिए कोई डिस्कशन हमने देखा नहीं है ऐसा कॉन्क्रीट. So one of the key factors that improves the level of competitiveness is the ability of business to acquire the best mix of inputs at the most effective rates. So businesses they need access to inputs. तो पॉलिसी मेकिंग जो हमारी बात है यही है कि हमने चीपेस्ट इंपोर्ट्स कैसे लेने हैं डिफरेंट सोर्सेज से रॉ मटेरियल्स, और उसको फिर कन्वर्ट करना है एक्सपोर्टेबल आउटपुट में. हमारी वो प्रोडक्टिविटी लेवल का काम है, उसमें हमारी कितने प्रोडक्टिव कितने कंपेरेटिव है वो हम करेंगे, उस पर डिस्कशन यही होना चाहिए. तो अनफॉर्चुनेटली हमने इंपोर्ट साइड जो पॉलिसीज है उस पर हमने ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया है, हालांकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें यस प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स की मेंशन किया हुआ है कि हम वो जीसीसी के साथ करेंगे. ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंसेस की बात की ईस्ट एशियन इकोनॉमी की, बट इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा वो हमने डिस्कशन नहीं देखा है इसमें ज्यादा. देयर नीड्स टू बी अगेन एन एम्फेसिस. हमने जो ट्रेड मिशंस और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको कैसे एंगेज किया जाए और उनको यूज किया जाए बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के साथ जो होस्ट कंट्रीज में है उनके साथ, सो दैट पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर्स है हमारे मैन्युफैक्चरर्स है वो इनपुट्स हमारे जो है वो डिजायर्ड ऑप्टिमल लेवल पे कैसे लें. फिर हमने जो न्यू जनरेशन ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स, अब वो जो अग्रीमेंट्स जो अब जो रिसेंटली जो साइन होती है वो
they go ahead. They are more than what the basis of World Trade Organization is. WTO plus और WTO X जो मानी जाती है वो agreements है. तो हमारी जो trade agreements है वो काफी outdated हो गई हैं. उनको हम कैसे improve किया जाए, कैसे consider किया जाए better market access के लिए, but also कॉपरेशन कैसे लेके आए हम लोग दूसरी कंट्रीज के जिसका एक्सपीरियंस है रहा है उनकी कैपेबिलिटीज अपने लोकल प्रोड्यूसर्स की इंक्रीज करने के लिए. तो वो नॉलेज को कैसे टैप इन किया जाए और इंक्रीज किया जाए और उनके साथ हम कॉपरेशन कैसे करें कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी इवेंचुअली इंक्रीज करें. तो अगेन एक और क्लैरिटी जो है कि हमने क्या अचीव करना है. प्रोडक्ट एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का ऑलवेज डिबेट है. अब एक ट्रेड इंटेलिजेंस एंड नेगोशिएशन एडवाइजर एक लॉन्च किया गया यूनाइटेड नेशंस इसके, आप जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक अगर आप कंट्री के साथ ट्रेड नेगोशिएट और उसके साथ आप अपनी मार्केट एक्सेस इंप्रूव करते हैं तो उससे कितना फायदा होता है. तो अभी भी देखा जाता है कि यूएस से हम अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हम पोटेंशियल हम करें और उस पर टैरिफ ड्यूटीज कम किया जाए तो हम $2 बिलियन तक और ज्यादा कमा सकते हैं यूएस सिर्फ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में यूएसए के साथ. बट इसकी जो डिस्कशन है और इसकी प्रोडक्ट मार्केट और या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की जो बात है इसमें हम कैसे अनटैप पोटेंशियल को हम इंक्रीज करें, राइट. तो ये एक डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट इट कम्स टू इज बेसिकली कि व्हाट इज द लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इन दिस. How do we basically lack of productivity as major impediment towards export growth, right? So the idea is how do we increase and introduce a master plan that focuses on productivity growth. So हमने एक लेके आना है, पूरी बात ही इसमें ये करनी है कि हम ये जो मास्टर प्लान एक लेके आए तो उसमें प्रोडक्टिविटी की जो बात है और पहले भी हम बात कर चुके हैं इसमें इस फोरम में और इसको किस तरह हम इंक्रीज किया करें. तो अगेन what is the imperative? So it is imperative to discuss how Pakistan is likely to place itself in the global and regional value chains. तो पूरा जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी कि अब हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स पे कैसे टैप इन कर सकते हैं, कैसे उसकी पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं. पाकिस्तान फोकस ऑन एक्सपैंडिंग इट्स फॉरवर्ड लिंकेजेस, राइट. सो हमारा जो जनरली अभी जो हम देखते हैं हमारी जो एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी अगर देखा जाए तो हम लोग रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उससे फिर हम चाह रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज वो मैन्युफैक्चर करके उसकी एक्सपोर्ट करें. अब वो जो स्ट्रैटेजी है बट आप ईस्ट एशिया में देखें तो वो बैकवर्ड लिंकेजेस पे है. वो क्या करते हैं, वो इंपोर्टेड इनपुट्स को लेके कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्सपोर्टेबल आउटपुट. तो ये जो डिफरेंस है इसको हम किस तरह हम लोग हमारे प्लान में इंप्लीमेंट करें कि किस तरह हमने आगे बढ़ना है. ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को देख के अगर हम डिजाइन करना चाह रहे हैं हमारी प्लान्स तो इस तरह से हमने करना है या हमारा किस तरह की हमने पोजिशन करना है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है. तो एक और कंक्लूजन जो है बिफोर आई कंक्लूड मुझे एक मेंशन करने दे कि हमने जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं और इंपोर्ट करते हैं उनके बारे में भी एक डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ मेंशन ऑफ द नेशनल कंप्लायंस सेंटर इन दिस बट अगेन वो काफी सुपरफिशियल है और लिटिल डिस्कोर्स ऑन व्हाट इट्स एक्टिविटीज और हमने काफी सुना नहीं है उसके बारे में कि क्या वो कर रहा है, कैसे वो अचीव कर रहा है. अगेन जो टेक्निकल नॉन टैरिफ मेजर्स ऑन इट्स इंपोर्ट्स उसकी बात कैसे करने, क्वालिटी टेस्ट हमने जो इंपोर्ट करने, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा, ये जो हम सुनते हैं कभी कभी के सब स्टैंडर्ड गुड्स हमारे पास डंप किए जाते हैं चाइना की तरफ से, या हम जो फोन लेके आते हैं वो चंद महीने चलता है और फिर खराब हो जाता है और फिर बाकी गाड़ियों का जो इश्यूज आते हैं इसको भी हमने सॉल्व करना है अगर हमने compete करना है ग्लोबल मार्केट में. सो अगेन बट मुझे सिल्वर लाइनिंग से जरा ये थोड़ा करने दे. एक पाकिस्तान सिंगल विंडो लॉन्च किया गया है जो ई डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं. वो काफी इंपॉर्टेंट एक स्टेप है बिकॉज वो ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस को बड़ा स्ट्रेट सिंप्लीफाई करता है और ऑनलाइन करके उस पर कॉस्ट बड़ा कम कर दिया है उसमें. तो हमने हमारी रैंकिंग जो है यूएन ग्लोबल डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन सर्वे में जो देखा है कि उसमें काफी इंप्रूव हुई है. पहले हम श्रीलंका और बांग्लादेश के नीचे थे, अब हम काफी ऊपर आ गए और इंडिया जो टॉप परफॉर्मर है रीजन में इन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन हम उसकी तरफ काफी करीब आ गए हैं उससे. और आई थिंक नेक्स्ट 2 years में भी हम देखेंगे कि हम काफी इसमें ऊपर बढ़ेंगे जैसे ही हमारे डिजिटलाइज होंगे हमारे जो ट्रेड प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस. फिर एक दूसरी एक बात है कि हमने जो ग्रीन ट्रेड की बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो ग्रीन ट्रेड जैसे हम देख रहे हैं सोलर पैनल्स इंक्रीज हुए हैं, फिर हम ये जो बात कर रहे हैं अब जो हमारा पावर सेक्टर है वो काफी रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जा रहा है. उसकी वजह से एक बड़ा चेंज आएगा और उससे एक बड़ा इम्पैक्ट एक आएगा जो हमारे फ्यूल इंपोर्ट्स जो हैं उससे काफी कम हो जाएंगे. और मेरा ये कहना है कि हमारा जो इंपोर्ट्स है उसकी हम कॉम्पोजिशन देखें तो फ्यूल इंपोर्ट्स जो है काफी हाई प्रोपोर्शन है. अगर हम उसको कम कर सकते हैं और उसको हम आधा कर सकते हैं और इवेंचुअली हम काफी रिड्यूस कर सकते हैं तो उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं उस तरीके से. तो हमने इंपोर्ट की कॉम्पोजिशन पे बात करना चाहिए rather than trying to just reduce imports and trying to solve our balance of payment crisis. So I think with this I'll end this. Thank you. डॉक्टर आदल थैंक यू वेरी मच. यकीन करें एक इकोनॉमिस्ट जो है
उनका वो जिस तरह होता है ना कि एक खुशी से फूले नहीं समा रहे कि इतना खूबसूरत आपने स्टेटिस्टिक्स शेयर किए, इतने जबरदस्त एविडेंसेस, स्पेसिफिकली जब आपने कहा कि हमारा जो इशू है डेट्स लो प्रोडक्टिविटी और हमारे कास्टिंग का प्रॉब्लम है कि हमें इंपोर्ट सस्ती पड़ती है, हम क्यों यहाँ पे करें। तो बड़ा कम्प्रिहेंसिव आपने उसको लिया। और अभी हमारे लोग वो डिफरेंट क्वेश्चन क्वेरीज आ रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन आंसर में सेशन पे आने से पहले अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पास जो थर्ड एंड द लास्ट पैनलिस्ट है डॉक्टर कैस असलम। डॉक्टर कैस असलम इस वक्त यूसीपी बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, इंग्लिश आर्टिकल्स में इनकी बड़ी अच्छी नेशनल लेवल पे एक रिप्यूट है। तो डॉक्टर साहब से बात करने से पहले ये मैं सिर्फ कि जिस तरह हमने कहा कि उड़ान में जो इनके टारगेट्स हैं, लाइक हमने ग्रोथ ये करनी है, इन्फ्लेशन को यहाँ पे हमने स्टेक करना है, एक्सपोर्ट को इधर हमने लेके जाना है, उसके लिए जो उड़ान पाकिस्तान में उन्होंने स्ट्रेटेजीज दी हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि दे हैव टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन नेक्स्ट 5 years. Second one is to promote peace and security. And third one is to develop the human capital within the country. Fourth one is good governance. And fifth one is policy and legislative reforms. तो क्या पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इस तरह प्रमोट करके हम अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे? तो हम डॉक्टर कैस असलम साहब की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसका डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम। और हमें बहुत अच्छा लगा आपको काफी अरसे बाद सुनने का। मुझे खुद और मेरे जो कोलीग्स हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक वो है कि आपको आपके साथ जो है वो बात करेंगे इकोनॉमिक इश्यू पे। डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम। शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम एंड टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वॉल्व किया है आज के सेशन में। दो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हुई है, मेरा ख्याल है कंप्रीहेंसिव थी इन द कॉन्टेक्स्ट। पहली बात तो ये, मैं ये सारे को दो तरीकों से बात करूंगा अगर इजाज़त दे दें। पहला तो ये है कि प्लान अच्छी है, विजन अच्छी है, विशफुल थिंकिंग अच्छी है, मगर वो जो आपके पैनलिस्ट ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी इकोनॉमी के वो ठीक नहीं है। आप बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आपकी जो लैंड है वो लीस्ट प्रोडक्टिव है इन द रीजन। आपकी लैंड जो है वो स्मॉल फार्मर्स जो कोई 40% हैं उनके हाथ है, जो प्रिमिटिव तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं। आपकी लैंड 40% लार्ज फार्मर्स पे है जो बी फार्मिंग जो है शेयर क्रॉपिंग से करते हैं। कैपिटलिस्ट फार्मर जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो सिर्फ 20% है। इसी तरह आपकी लेबर, जिसकी बात पहले भी हुई अभी भी हो रही है, प्रोडक्टिविटी उसकी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। आपका जो 60% यूथ है उसको हमने कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी। आपके स्कूल्स जो हैं, जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं, ये स्टेटिस्टिक्स देख लीजिएगा, 1-2 मिलियन ऊपर नीचे होगी कि 26 से 28 मिलियन बच्चे हर साल दाखिल होते हैं प्राइमरी स्कूल में, सिर्फ 2 मिलियन मैट्रिक करते हैं, बाकी किधर जाते हैं? ये आप उनकी स्किल्स कैसे एनहांस? कुछ हजार हैं जो आप टेफ्टा के थ्रू करते हैं। सो दी स्किल। और अगर तो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो मेरा ख्याल 180 यूनिवर्सिटियां या 200 यूनिवर्सिटियां, इन पे सिर्फ इनकसार है इस दौरान। पाकिस्तान को तो शायद, मगर वो भी अब बाहर जा रहे हैं, उनकी भी जॉब्स का, उनकी भी सारे। हमने अपनी यूथ को उस लेवल पे स्किल्स देने की कोशिश नहीं की, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि रेमिटेंसेस आप आ रही हैं। अगर यही स्किल्ड यूथ, और वो आईटी की बात हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईटी एक्सपोर्ट्स पे टैक्स क्यों लगाया हुआ है? हमें तो ये पता है कि इंपोर्ट्स पे टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट्स को फ्री किया जाता है ताकि वो डॉलर कमाए। एक तरफ आप डॉलर कमाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप टैक्स से
तीसरा आपका जो कैपिटल है, ना आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल है, डेट ट्रैप में आप हैं, ना आपके पास टेक्नोलॉजिकल कैपिटल है, आप इंपोर्ट करते हैं मशीनें। चौथा जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं, 1% आपके पास प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स हैं जो शायद लार्ज फर्म्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आपकी जो एसएमईज हैं, उनको आपने एक्सेस ही नहीं दी हुई वर्ल्ड मार्केट की, उनको आपने क्वालिटी कंट्रोल नहीं दिया हुआ। सो एक तो आपके वो जो चारों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो इकोनॉमी को डायरेक्शन देते हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। मगर उसको ठीक करने के लिए अब दूसरा बात आती है कि गवर्नमेंट का हाथ कितना आपकी इकोनॉमी के अंदर है, उसको कितना बाहर निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि ये एजुकेशन, ये एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री, ये पानी, ये सारे तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। सो क्या आपकी प्लान के अंदर कितना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का हाथ होना है इस सारे को ठीक करने में? इन्वायरमेंट की बात हुई है, दो बातें करने लगा हूँ एनवायरमेंट में। एक पहली तो ये है कि सिर्फ 1 मिलियन रुपीज हर साल बजट में एनवायरनमेंट के लिए रखे जाते हैं, और वो भी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। आप एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। दूसरा जो है वो ये है कि एसडीजीज जो अब 2025 आ गया, अब 5 साल रह गए हैं, उसमें वन ऑफ द लोएस्ट इम्प्लीमेंटेशन है पाकिस्तान की। सो जब आप, और फिर क्लाइमेट चेंज का इशू है, आप बाहर से पैसे मांग रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे, अपने आपने क्या किया और कैसे फ्लड को कंट्रोल करना है, कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस लानी है, आपने कोई प्रोग्राम्स कौम को नहीं दिए हुए। ये दोनों तीनों बातें कहने के बाद मैं दूसरी बात करने लगा हूँ। ये जो प्लेयर्स हैं वो तीन हैं, एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट सेक्टर, और एक मजदूर या पब्लिक। पब्लिक की बात तो मैंने कर दी कि वो अनप्रोडक्टिव है, उसको और उसकी प्रोडक्शन हमने फैसला करना है कि प्राइवेट सेक्टर्स ने करनी है या पब्लिक सेक्टर में। कहीं ना कहीं तो उसकी सिर्फ एजुकेशन, हम 25 ईयर्स की या 20 ईयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्किल्स एनहांसमेंट की कर रहे हैं, 21st सेंचुरी की स्किल एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा जो है, आपके जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आप कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं इस सारे प्लान में, क्या उनका रोल है? अगर है तो उनका मेजर रोल होगा, कंपटीशन कराना पड़ेगा। आप ओलिगार्क्स के थ्रू नहीं चला सकते। अगर आप देखिए कि केपीके और बलूचिस्तान में सरदार बैठे हैं, सिंध में ज्यादातर वडेरे बैठे हैं कराची को छोड़ के, पंजाब में जो है वो भी मिडिल मैन है, और वहां भी ओलिगार्क्स हैं। तो ये जो कैपिटलिज्म है उसको अगर आपने बिल्ड करना है तो फ्री मार्केट तो देनी पड़ेगी ना, जिसमें आपकी एनर्जी कॉस्ट की बात हुई है। मगर ये आईपीपी से जो जान छुड़ानी है या उसका कंपटीशन कराना है, ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम पेट्रोल को, उसका कंपटीशन कराना है। आप ओलिगार्क्स बना के, ओलिगोपोलीज बना के, शायद मैं नहीं मानता कि ये सारा कुछ हो सकेगा। उसके अंदर जो गवर्नमेंट का रोल है, आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, आपका जो खुद मानते हैं आपके वो जो आपके टैक्स कलेक्शन एजेंसीज हैं, उनमें कितनी करप्शन है, उतनी कितनी पिलफरेजेस हैं, उनमें कितना अनप्रोडक्टिव कार्य और इस तरह की चीजें हैं। वो जब तक आप गवर्नेंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सारा पेपर पे ही रह जाएगा जिसना पहले तक रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू ब्रिंग इन योर एसएमईज इनटू द फोरफ्रंट। यू हैव टू गिव देम एक्सेस टू द वर्ल्ड मार्केट। एंड अब मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे हम एक्सपोर्ट करते थे या करते हैं कारपेट्स। कारपेट को हमने कॉटेज इंडस्ट्री रखा हुआ, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। आप उसको पीस ऑफ आर्ट बेचें तो वो मिलियंस का बिकेगा, आप उसको एज कॉटेज इंडस्ट्री में तो वो हजारों डॉलर का बिकेगा। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्राइसिंग। आपके पास ऐसी ऐसी रिसोर्स है, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, फ्रॉम एनिमल रिसोर्स, फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स, जिसको आप टैप कर सकते हैं। मुझे कोई प्लान आपको, यू आर अ कंट्री विद माउंटेन्स, यू आर अ कंट्री विद सी फ्रंट, you are a country with plains and valleys and different जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल। आपने ये जो है
प्लान्ड टूरिज्म के बात नहीं की, वो आपको इतना डॉलर कमा सकती है, वो इतना चीजें कर सकती है। तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज that the basic structures of the economy are fragmented and fragile, and the government will have to take out its hand and allow competition to promote all what it wants to do. Otherwise, ये मैं एग्री करता हूँ, जब 0.9 या 1% या 1.5% पे ग्रोथ हो और आप खास 6% की करते हो, आप याद रखिएगा कि 6% की ग्रोथ का मतलब है कि एनर्जी इंपोर्ट्स या एनर्जी प्रोडक्शन भी 6% ग्रोथ को मीट करने के लिए होगी। वो आपने पानी से लेनी है, हवा से लेनी है, सूरज से लेनी है, या बाहर के तेल से लेनी है, या न्यूक्लियर से लेनी है। ये कोई प्लान बना होगा ना कि वो एनर्जी कॉस्ट कहाँ जाएगी जो इतनी ग्रोथ आपने देनी है, वो एग्रीकल्चर से देनी है। एग्रीकल्चर, मजे की बात तो ये है कि 6 महीने लगते हैं चावल बना के एक्सपोर्ट करने में, और आप खरीदते हैं लैपटॉप जिसको एक दिन में कई लैपटॉप बन जाते हैं। तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं जब तक डिवर्सिफाई नहीं होंगी, जब तक वैल्यू ऐड नहीं होंगी, जब तक वो पॉलिसी नहीं आएगी कि प्राइवेट सेक्टर ने कैसे ये डिवर्सिफाई करनी है, एक्सपोर्ट किन मुल्कों को करनी है। आई एग्री कि चाइना और अमेरिका ही आपके बड़े पार्टनर्स हैं, मगर आपको देखना तो पड़ेगा कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं और आप क्या बना रहे हैं। So the whole picture has to be focused to a level, but underlying thing is that our children, our youth, they have to come up to these challenges, and we have to train them for those challenges. How we are going to train them, I don't know. That is what I think I have to say in all this. Dr. Cass, thank you very much for your beautiful discussion on the theme, और specifically अगर हम देखें कि जिस तरह मैंने बताया कि I am feeling कि we have the best panel of Pakistani economists, कि जिसमें हमारे पास डॉक्टर तलत अनवर साहब से लेकर डॉक्टर आदल और डॉक्टर आदल से लेकर डॉक्टर कैस तक हैं, और इन्होंने इकोनॉमी के जितने एस्पेक्ट्स जिस वक्त हम डॉक्टर तलत साहब से बात की तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा डेट सर्विसिंग और डेट ट्रैप से लेकर हमारे सोशो इकोनॉमिक के साथ अटैच किया। देन डॉक्टर आदल ने बहुत कम्प्रिहेंसिवली स्टेटिस्टिकली इंपिरिकल बेस्ड और पाकिस्तान के, और डॉक्टर कैस साहब ने वो सारे के सारे समंदर को वो क्या दूसरे में बंद करने के लिए कि हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है और हमारी जो पैटर्न्स हैं, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, उड़ान भर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। और अब हम एट द एंड कुछ पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस ले लेंगे, और उन क्वेश्चन पे के लिए लोग अपना हैंड रेज करेंगे, और उतनी देर तक इरफान साहब आप काइंडली 2 मिनट में सिर्फ अपने कोलीग्स को ये बता दें कि किस तरह ये अपने जो आपका फीडबैक फॉर्म है, अपना ईमेल है, वो आपके साथ शेयर करें, ताकि द गुड न्यूज इज कि पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वो भी उन तक पहुंचाएगा। और दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट कि आप जो भी लोग हैं उनके पास कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन होगी कि हमने किसी अच्छे इवेंट में किया। और करूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम जिस तरह ये एक बड़ा खूबसूरत एक कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी हुई है, इसको एक रेगुलर 2 टाइम इन अ मंथ या वट एवर जो आपके लिए फिजिबल है, ताकि इससे हम जिस तरह इन तीनों पैनलिस्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि हमारे पास यूथ है, इसको हमने स्किलफुल करना है, यूथ को एम्पावर करना है, यूथ को एजुकेट करना है, तब जाके हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकेंगे, तब हम लॉन्ग टाइम ग्रोथ अचीव कर सकेंगे, तब हम अपने उड़ान के जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकेंगे। तो उसके लिए काफ़ी लोग जो है वो क्वेश्चन भी करना चाहते हैं। उससे पहले इरफान साहब काइंडली इनको ब्रीफ कर दें किस तरह इनको सर्टिफिकेट आप सेंड कर देंगे, उतनी देर तक हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर समीउल्लाह। आई एम गोइंग टू शेयर दी फीडबैक फॉर्म इन चैट बॉक्स, तो आप उसको फिल कर लें और उसी पे आप लोगों का फीडबैक भी आएगा। आप लोग जो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो पैनलिस्ट हैं
वहां तक आप लोगों का मैसेज जो है वो कन्वे कर लें। आई थिंक आप डिफरेंट क्वेश्चन ले लें, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ताकि वो हो जाए। फीडबैक फॉर्म में शेयर कर देता हूँ। थैंक यू। जी प्लीज। हमारे पास है महमूद अली साहब, सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहते हैं। इरफान साहब प्लीज इनका माइक ओपन कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महमूद साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप क्वेश्चन करिए प्लीज। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर मैं AERC कराची में एमफिल का स्टूडेंट हूँ, और मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बात की कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको पूरा चाइना की जो भी इंडस्ट्री है उसने टेक ओवर किया हुआ है। छोटी सी छोटी चीज़ भी जो है वो हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो एक मशहूर किस्सा हमें हमारे टीचर सुनाया करते थे कि एक जर्मन सोल्जर होता है, वो किसी मुल्क में जाता है, तो वो वहाँ शूज लेने के लिए जाता है, तो शॉप वाले को कहता है को कोई भी ऐसा शूज, जो शूज दो मुझे वो मेड इन जर्मनी हो। तो दुकानदार उससे हैरत में पूछने लगा कि आपको मेड इन जर्मनी का शूज क्यों चाहिए। तो वो जो सोल्जर था वो कहने लगा कि अगर मैं मेड इन जर्मनी का शूज लूंगा तो वो मेरे मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको मतलब बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो मैं ये सवाल करना चाहता था कि हम अब अगर जाते हैं ना किसी भी चीज दुकान पे या कुछ भी लेने, तो कहते हैं भाई अगर मेड इन जापान है तो मुझे दीजिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें लोगों का, हम तो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम इन चीजों का पता है, हम ही वो चीजें नहीं कर पाते, तो एक जो आम मतलब आदमी है, हम उसका माइंड सेट कैसे डेवलप करें। थैंक यू महमूद साहब। डॉक्टर आदल आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे। और डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा, तो ये मेड इन जापान, ये तो जनरली यही है कि आप एक क्या क्यों ले रहे हैं, राइट? क्वेश्चन इसमें यही है कि आप मेड इन जापान की अगर आप चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में लेते हैं, वो तो क्वालिटी है ना जापान की। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री इस तरह से क्यों नहीं आगे आ सकी। क्वेश्चन यही हमने करना है कि हमारे पास जो ऐसे जी सर। रिसोर्सेज हमने क्यों नहीं किया है। तो इसके लिए वही करना है हमने डिस्कस, कि पाकिस्तान के पास क्या वो चीज़ है, राइट, जो एक्सपोर्ट। अब आप टेक्सटाइल्स में जाके देखें तो हमारे काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स हैं जो दुनिया भर के जो हर मार्केट में कर रहे हैं, लेकिन बड़े नंबर, यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स, वो वाली बात हो गई। तो वो, बट आप देखे जाए उनकी, तो आप वो क्या करते हैं पाकिस्तान में, जो हमारा जो नेचुरली हमने क्या करना है कि ब्रांड नेम बनानी है, राइट, इसके लिए। तो ब्रांड नेम कैसे बनाएंगे? हमने यही है कि हमारी क्वालिटी, हमारी जो प्रोडक्ट्स की है वो पाकिस्तान में किस तरह आ रही है। तो ये मैंने एक्चुअली पॉइंट इसका बड़ा किया था कि हमारा, अब टैरिफ्स की तो बात बिल्कुल अलग ही कर दें इसमें, ये मैं इसमें नहीं, बट हमारा नेशनल कंप्लायंस सेंटर एक है। अब वो नेशनल जी कंप्लायंस सर। सेंटर का काम क्या है कि आपका ब्रांड नेम बनाना, पाकिस्तान में जो भी प्रोडक्ट मिले वो सर्टेन क्वालिटी का मिले, और वो क्वालिटी आपके लोकल प्रोड्यूसर्स और आपके फॉरेन प्रोड्यूसर्स के भी इंप्लीमेंट किया जाए। तो अगर आप जी कोई सर। इंपोर्ट करते हैं वो सर्टेन क्वालिटी से मीट होना चाहिए, और लोकल जो प्रोड्यूस करता है, जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी भी है जो उसमें काम है, उसकी भी एक पूरा इसमें जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करता है कि आप जो भी लोकली कंज्यूम कर रहे हैं वो एक सर्टेन क्वालिटी, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी सेहत या आपकी इश्यूज कर सके या डेंजरस हो कंजम्पशन के लिए। तो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, हमने हमारे जो क्वालिटी, जो कंप्लायंस, जो क्वालिटी टेस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स, इसका हम कैसे डेवलप करेंगे कि पाकिस्तान में जो अब हमारा फॉरेन कंज्यूमर जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट ले, वो कहे कि मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये सेफ है कंज्यूम करने के लिए, ये प्रोडक्ट एक तरीके से बना गया है या प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके मैं सेटिस्फाइड हूँ या जो है, तो उसमें है। और आज आप जमाना में देखें तो एआई का जमाना है। अब एआई में क्या है, ब्लॉकचेन्स की अगर वगैरह की जो बात होती है, आपने एक प्रोडक्ट अगर आपने खरीदा है उसको आपको पता चल जाता है, कभी कभी आपके पास वो होता है, उसकी बारकोड्स होते हैं, बारकोड आपने स्कैन कर दिया, आपको पता चल गया कौन से फार्म से लिया गया है, कौन से लिया गया। तो ये पूरी चीज है, लोग इसमें यही एक है कि क्वालिटी हमने बनानी है प्रोडक्ट्स की। और ये जैसे कंपटीशन की बात की है, तो कंपटीशन जब इंपोर्टेड गुड्स की आएगी और हमें फोर्स किया जाएगा तो क्वालिटी वो स्टैंडर्ड बनेंगे। इसकी वजह से हम अनफॉर्चुनेटली बड़ी क्लोज्ड इकोनॉमी है, इस तरीके से हमने क्वालिटी पे तो कभी बात ही नहीं की है, ना ही कभी डिस्कोर्स होती है हमारी। तो ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेड इन का जो ये आ जाता है उसके लिए हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए हम टैरिफ पे रुक जाते हैं, आगे क्वालिटी पे बात नहीं करते। जी जी जी, डॉक्टर साहब इरफान। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जी साहब थैंक यू, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इस पे टॉक। अभी हम एक और क्वेश्चन जो है ये सलवा अशरफ की तरफ से आया है कि पाकिस्तान को अभी तक जो हमारे प्लान्स फेल हुए हैं उसमें जो सबसे बड़ा बैरियर था, क्या उसको ओवरकम करने के लिए इस जो उड़ान पाकिस्तान 25 में लॉन्च हुआ है,
क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हमने रखी है कि हम जो पहले हमने माजी से लर्न किया कि ये हमारे बैरियर थे, उसको ओवरकम करो? और मेरे ख्याल इसके लिए सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से डॉक्टर तलत साहब बड़ा इस पे वो अच्छा हमें जो है ना वो दे सकते हैं इस पे रिस्पांस। डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर तलत साहब के महज सिग्नल का शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो। हम जी जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज भी आ रही है और आपकी तस्वीर भी आ रही है। जी जी। और डॉक्टर साहब, क्वेश्चन आप तक पहुंच आया होगा कि जो हमें अभी तक जो सबसे बड़ा बैरियर आया हमारे हर डेवलपमेंट, जब जिसका कहा कि उड़ान को क्रैश करने में, क्या हमने ये जो उड़ान 25 में लॉन्च किया है, क्या हमने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी रखी है कि माजी में जो हमारे बैरियर थे, जो हमारी मुश्किलात थी, उसको हम कैसे टैकल करके तो अब हम आगे चल सके कि ये हमारी उड़ान क्रैश ना हो? जी, ग्रोथ जो पॉवर्टी के और सोशल सेक्टर के हवाले से जो एविडेंस है क्रॉस डेवलपिंग कंट्रीज, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है पॉलिसी का, वो ग्रोथ का हुआ है। इफ़ यू हैव हाई ग्रोथ रेट, जिन कंट्रीज ने हाई ग्रोथ रेट अचीव किया है वहाँ पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। ये इंटरनेशनल एविडेंस है और क्रॉस कंट्री एविडेंस है। और चाइना ने भी अपनी पॉवर्टी रिड्यूस इसी तरह की है कि वहाँ ओवर डिकेड्स जो आप देखें कि 6, 7, 8%, 9%, इवन 10% तक उनका ग्रोथ रेट रहा है। तो एज ए रिजल्ट दे हैव लॉट ऑफ सेविंग गवर्नमेंट, और फिर दे कैन, व्हेन गवर्नमेंट हैज सेविंग इट कैन स्पेंड ऑन सोशल सेक्टर। पाकिस्तान में भी एक सोशल सेक्टर स्ट्रेटजी है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जानी जाती है। वो मेयरली जो है ना कैश सपोर्ट तक महदूद है, क्योंकि कैश सपोर्ट उनको सस्टेनेंस के लिए दिए जाते हैं जो गरीब तरीन पॉपुलेशन है। सो पुअर आर ऑलवेज पुअर, वो उससे बढ़ नहीं पाते। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनको पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है उसमें ऐसे कर्जे दिए जाएं जिससे कि इनकम जनरेशन हो। और दूसरे हमें जो प्रमोट करना चाहिए माइक्रो फाइनेंस को। आप बांग्लादेश में देखें, माइक्रो फाइनेंस हैज एलिवेटेड पावर्टी। जो बांग्लादेश है, इट इज़ नोन फॉर द पावर्टी। बांग्लादेश में पावर्टी लेवल 50 और 60% तक था। ये 1960 और 65 की बात बता रहा हूँ। और उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में पावर्टी लेवल कम था, लेकिन बांग्लादेश में पावर्टी हाई थी। और उन्होंने वहाँ डॉक्टर यूनुस ने माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए पावर्टी ख़त्म की है। और पावर्टी लेवल आज देखें कि उनका भी 20-22% तक आ गया है, जो कि हमारे पाकिस्तान के बराबर ही है। अब पाकिस्तान में करंट आप देखें कि करंट जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है उसका गरीब लोगों पे बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है। महंगाई इतनी हुई है और इन्फ्लेशन 38-40% तक गया है, तो उसके नतीजे में पावर्टी बढ़ गई है। जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने पावर्टी फोरकास्ट किया, क्योंकि एक्चुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो जो उनके फोरकास्टेड फिगर है उनमें अगर आप देखें तो वो तकरीबन 40% तक पावर्टी चली गई है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि, और वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट में फोरकास्ट की है पावर्टी, कि पाकिस्तान में जो एंटिसिपेटेड पावर्टी लेवल है 40% के करीब होगा। वो इसलिए कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे के सारे वो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस दे हैव वर्सन, और उनके ख़राब होने के नतीजे में पावर्टी लेवल बहुत बढ़ गया, जो कि ग्राउंड रियलिटी से कंसिस्टेंट है। ये उनका जो सिनारियो है जो उन्होंने फोरकास्ट किया है। तो हमें अगर पावर्टी रिड्यूस करनी है तो हमें ग्रोथ को रिवाइव करना होगा, और साथ साथ हमें जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो शुरू करने पड़ेंगे। उसमें सब्सटेंटिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। यानी माइक्रो फाइनेंस में अभी हम जो है ना बहुत पीछे हैं इंडिया से, बांग्लादेश से। इतनी इस लेवल की इन्वेस्टमेंट और इंटरवेंशन नहीं हो रही है जितनी रिक्वायर्ड है पाकिस्तान में। तो माइक्रो फाइनेंस में जो है ना वो गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं होते, नॉन बजटरी ये इनिशिएटिव्स होते हैं, तो इसका बजटरी इम्पैक्ट नहीं होता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्जे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है ना माइक्रो फाइनेंस के लिए एलोकेट करे। जी ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। हम 3-4 मुख्तलिफ लोगों ने एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन किया है, और मेरे ख्याल हम डॉक्टर कैस साहब को सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 मिनट में इसको रिस्पॉन्ड करें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे इन सारे इकोनॉमिक प्लान्स में
सबसे बड़ा जो बैरियर है दैट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो जाए? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे जरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की डेफिनेशन दे दीजिए। मार्शल लॉ लगना और 12-13 साल गवर्नमेंट रहनी, तो शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप इसको कह देंगे। ग्रोथ भी उन्हीं दिनों में आई, फॉरेन पैसे भी उन दिनों में आए। ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो ठीक है 5 साल पूरे नहीं करती, मगर जो सारी पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो तो ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। सो मैं उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे कह दूं? असल इशू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेरे लिहाज से तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी है। अगर आप बड़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिविएशन करते रहें तो शायद लोग जो हैं वो ना टेररिज्म की तरफ जाएं, ना ये हमने आई एग्री विद माय टू कोलीग्स कि हमने तो जो सारा अभी तक ये जो प्लान क्या फेल हुए, अब आप देखें सारा कंसंट्रेशन हर गवर्नमेंट का, वो पॉलिटिकल हो या गवर्नमेंट की हो, मिलिट्री हो, वो आपकी एलीट कैप्चर पे है। और जब तक आप उन लोगों से पैसा लेके गरीबों तक, गवर्नमेंट का काम है गरीबों को प्रोटेक्ट करना। हमारी गवर्नमेंट जो है इट रॉब्स द पुअर एंड फीड्स द रिच। जब तक आप इस पैराडाइम को मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ मिलाता हूं, ना कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मिलाता हूं। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे होते, आप वैल्यू एड गुड कर रहे होते, आप जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस कर रहे होते, आप कंपटीशन कर रहे होते, तो शायद ही और फिर जो दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका तीसरा टियर जो है लोकल बॉडीज का, उसने लोकल ग्रोथ देनी है, उसने लोकल लोगों की नीड्स को पूरा करना है। वो तो आप रख ही नहीं रखे। जब तक आप उसको नहीं रखेंगे तो ये, और जब तक पर्सनल हेट्रेड्स पे चलेंगी ये सारी मामला, पार्टीज के अंदर अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चले तो नए लोग आ जाएंगे, पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं होगा। सो आई बिलीव दैट पहले तो गवर्नेंस पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लाइए और फिर गवर्नेंस इकोनॉमी में लाइए, चीजें खुद ही चलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है और हम बहुत जल्दी इस तरह का एक और सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी हमारे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात अपने वोट ऑफ थैंक्स के लिए आना था, लेकिन कहीं मीटिंग में स्टक हो गए हैं। वो कह रहे थे कि जितने स्पेसिफिकली पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम, हमारे जो पैनलिस्ट हैं और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, और वाइस चांसलर इज वेरी मच हैप्पी। और वो कह रहे थे कि हमें अपने आज जिस तरह आईटी का जमाना है, हम घर में, एंड क्रेडिट गोज टू अगेन पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम और इकोनॉमिक फोरम की एक छोटी सी वो कैंप भी ऑन कर सकते हैं और अपने जो पार्टिसिपेंट हैं इनको एक अच्छा थंब इंप्रेशन, ताकि आपका जो हैप्पीनेस का लेवल है और इन तक आपका जो पैगाम मोहब्बत है वो पहुंचे। तो उसके साथ इरफान साहब एक तस्वीर बना के हम इंशाल्लाह इसकी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट, इस पे सजेशन और बाकी जो लोगों के क्वेश्चन होंगे उनको भी हम रिस्पॉन्ड कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तलत अनवर, डॉक्टर आदन एंड डॉक्टर कैस और आहर पे इरफान साहब। Thank you for Pakistan Economic Forum's efforts. जी थैंक यू। Again at the end I am really thankful to the all panelists. डॉक्टर आदिल साहब, आप बड़ी बिजी रूटीन में थे और आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। डॉक्टर कैस असम साहब, आप थोड़े से इंजर्ड भी थे लेकिन आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। डॉक्टर तलत अनवर साहब तो माशाल्लाह जब भी रिक्वेस्ट की है इन्होंने हमेशा लबैक कहा, और ये इनका बहुत बड़ा पन होता है कि हमें ये टाइम देते हैं और अपनी जो एक जो व्यूज़ है उससे हमें नवाजते हैं। डॉक्टर समीउल्लाह साहब, अगेन मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा इतना अच्छा सेशन करने पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और स्पेशली वाइस चांसलर साहब का हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इतना अच्छा सेशन हम लोग कर सके। और तमाम पार्टिसिपेंट्स का मैं
एक मशहूर भी हूँ, लेकिन माजरत के साथ हमें नहीं उम्मीद थी कि इतने लोग आएंगे। हमारी जो जूम की कैपेसिटी थी वो 100 थी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो रही थी। तो इंशाल्लाह ताला वी विल अपडेट एज वेल। और हम सबका हामी नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।